انٹرنیشنل لائرز کلب یو کے کی 7ویں سالانہ کانفرنس لندن میں منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ بھر کے مختلف لا فرم سے وکلاء، سالسٹر اور بیرسٹر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد دنیا میں مسلح تصادم اور انٹرنیشنل قوانین کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں انٹرنیشنل لائرز کلب یو کے زیر اہتمام 7ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کو موجودہ حالات کے پیش نظر جنگ اور جنگی جرائم کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین اور ان کے یکساں اطلاق بارے آگاہی دی گئی۔ کانفرنس میں لارڈ قربان حسین، لارڈ ڈنکن، میئر آف لیوشم توصیف انور، میئر آف ایلنگ چودھری منیر احمد، لندن میں پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز، انٹرنیشنل لائرز کلب کے چیئرمین افضال چودھری، IBPC کے چیئرمین رضوان سلہریہ، پاکستانی میڈیا کے نمائندگان اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ بہت اچھا جی، آپ نے یہ جو آرگنائزیشن شروع کی پاکستان کے اور UK کے لائرز کو کنیکٹ کرنے کا، اس کی دو ہی ریزن میں سوچ سکتا ہوں۔ ایک تو آپ ایک ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں لائرز کمیونٹی کو، کس طرح لا سوسائٹیز ادھر کام کرتی ہے، کس طرح ادھر لیگل سسٹم ہے۔ With apologies from one of our guests who is English speaking, because 99.9% are Urdu speaking here. مقررین نے اس موقع پر بین الاقوامی قوانین پر تفصیلی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوکرائن اور روس کے مابین جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی قانون اور مسلح تصادم کے حوالے سے جنیوا کنونشن کا فرق واضح کیا۔ بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں کیونکہ ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ متحرک ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، اور بہت مواقع یہاں اویلیبل ہیں جو دوسری جگہوں پہ شاید نہیں اویلیبل ہوتے، تو میرا خیال ہے یہ بڑی بروقت اور بہت کارآمد یہ ٹاپک تھا۔ UK کی یہ بہت بڑی آج 7ویں کانفرنس ادھر لندن میں ہوئی، انٹرنیشنل لا کے اوپر تھی، کیونکہ دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی ریاستوں کی جنگ ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشنز کو انٹروین کرنا چاہیے، انٹرنیشنل لا موجود ہے، تو ان چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو ہم ڈسکس کریں کہ کس طرح پرامن طریقے سے جو ریاستوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تنظیم ایسی ہے جو ہمیشہ سے جو ہے ڈفرینٹ ایشوز کو اٹھاتی رہی ہے، وکیل ہونے کے ناطے یہ چیزوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کمیونٹی کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ میں بہت تھینکفل ہوں ILC UK کو کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میری سروسز والتھم فارسٹ ریزیڈنٹس کو ریکگنائز کی کہ میں نے کیا کیا کام کیا کووڈ کے دوران، اور بہت اچھا ایونٹ ہے، بہت اچھے لوگ آئے ہیں، بہت اچھے اسپیکرز تھے جنہوں نے انٹرنیشنل لا اینڈ وار پہ اپنے خیالات دیے۔ ہمارا ٹاپک بھی بیسیکلی یہی تھا کہ جو انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل لا کی جو انفورسمنٹ ہے اور امپلیمنٹیشن ہے، اس میں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، امیر ملکوں کے لیے کچھ اور ہے اور غریب ملکوں کے لیے۔ انٹرنیشنل لائر کلب کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو ایک میسج جانا چاہیے کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور اس میں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سمجھا کہ اس ٹاپک کو چوز کیا جائے۔ انٹرنیشنل لائرز کلب نے ہمیشہ سے جو ہاٹ ٹاپکس ہیں اس کے اوپر کانفرنسز کی ہیں اور اپنی وائس جو ہے ریز کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یوکرائن کا جو کنفلکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کشمیر اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کا جو دوہرا معیار ہے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ جو انٹرنیشنل لا کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ خالی صرف اسٹیٹ ایکٹ کو یا اسٹیٹس کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ عام کنفلکٹ اور ہیومن رائٹس کے تناظر میں یہ ہر کسی کو ڈیل کرتا ہے۔ اس وقت چونکہ ایک برننگ ایشو تھا ڈیو ٹو دا یوکرائن وار کی وجہ سے، کہ کس طرح سے کنفلکٹ میں جو ہیومن سفرنگ ہے وہ ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کی، اور لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آج ہم نے ہماری کانفرنس تھی، ڈفرینٹ ہمارے مدعوین جو تھے جو انٹرنیشنل لا کے ٹاپک کے، انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر لارڈ قربان نے کشمیر، فلسطین اور عراق میں ہونے والی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کے دوغلے معیار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے دوہرے معیار کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ انصاف کے تقاضے پورے کریں تاکہ دنیا کا بڑی جمہوریتوں پر اعتبار قائم رہ سکے۔ I'm going to also take the liberty of being bilingual, and with apologies to Lord Duncan, although I have lived in this country. تقریب کے دوران مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات دینے اور نمایاں کارکردگی پر وکلاء، کمیونٹی ممبران اور میڈیا کے نمائندگان کو ایوارڈز اور شیلڈز پیش کی گئیں۔ کانفرنس کے اختتام پر کانفرنس میں شریک میئرز، کونسلرز اور نمایاں خدمات پر یادگاری شیلڈز دی گئیں۔
क्रिकेट के घर बरतानिया में क्रिकेट सीजन शुरू, खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग का आगाज भी कर दिया। कोरोना की वबा के बाइस बाद पहली बार बगैर पाबंदियों के खेलों की सरगर्मियां बहाल होने से वीरान ग्राउंड्स की रौनकें लौट आई हैं। खिलाड़ियों का जोशो खरूश अरूज पर पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता 2 बरसों में कोरोना वायरस के बायस जहां बरतानिया में दीगर शोबे मुतासिर हुए, वहीं खेलों की सरगर्मियां ना होने के बराबर थीं, जिसके बायस मैदान भी वीरान हो गए। गुज़श्ता बरस खिलाड़ियों की मैदानों में वापसी तो हुई, लेकिन वो समाजी फासले को बरकरार रखने समेत ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल ना करने और लंच की सहूलत हासिल ना करने के अलावा कई और सहूलियात से कासिर रहे। गुज़श्ता 3 बरस बाद ये पहला मौका है कि खेलों के मैदान बगैर किसी पाबंदियों के सजेंगे, जिस पर खिलाड़ी बेहद खुश हैं और रवां सीजन को वेलकम करने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 साल काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं कोविड की वजह से, फुल सीज़न नहीं हो सका, चेंजिंग रूम अवेलेबल नहीं थे, टीज वगैरह नहीं थे अवेलेबल, बट दिस ईयर इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह बाय द टाइम द सीजन कम्स ऑलमोस्ट रमज़ान भी कंप्लीट हो जाएगा, सो वी ऑल वेरी एक्साइटेड। इंडोर क्रिकेट ट्रेनिंग करते हुए बर्किंघम क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों का कहना है कि वो बेसब्री से क्रिकेट का आगाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है। It's been 2-3 years with coronavirus that the season has been affected. However, all the restrictions are lifted, and inshallah we have a good season and have a good season for Burnham Cricket Club. खिलाड़ियों का कहना था कोरोना के बायस गुज़श्ता चंद सालों में क्रिकेट ना होने के बराबर थी, लेकिन रवां साल वो बगैर किसी पाबंदियों के मैदानों का रुख करेंगे, जिस पर वो बेहद खुश हैं। इस साल लास्ट ईयर भी हमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रही, लेकिन इस साल फुल फ्लैज इंतज़ार है सीज़न का और इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सारे आई मीन ऑल द टीम्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, द क्लब्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड होपफुली हम दुआ करते हैं कि हमारा सीज़न अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। इस साल पाबंदियाँ उठा ली गई हैं, प्लेयर जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें एक माहौल मिलेगा और वो प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान कम्युनिटी ने नौजवान नस्ल की खेलों में शिरकत की हमेशा हौसला अफजाई की है। यही वजह है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी ने बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस लगाई जाने वाली पाबंदियों का खात्मा खेलों के लिए खुशाइंदा करार दिया है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत और मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बानी मरहूम पीर अलाउद्दीन सदीकी का सालाना उर्स ख्वाजगान नीरिया शरीफ इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ बर्मिंघम में मनाया गया, जिसकी सदारत नीरिया शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सुल्तान अल आरिफीन सदीकी ने की और उसकी तकरीब में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत के मरहूम कायद और मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बानी अलामा पीर अलाउद्दीन सदीकी का सालाना उर्स ख्वाजगान नईरान शरीफ इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। नईरान शरीफ के मरकजी सजादा नशीन और चांसलर मोहिउद्दीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पीर सुल्तान और आरफीन सदीकी की सदारत में मरकजी जामे मस्जिद गमकोल शरीफ में मुनक्कद उर्स की तकरीब में सालाना आस्ताना आलिया नईरान शरीफ के अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से इमाम खतीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद डॉक्टर पीर साजिद रहमान, रुकन नजरियाती काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वलाई मोड़ा शरीफ, साहबजादा पीर अयाज फजील काज़मी, खलीफा मोहम्मद नवाज हजारवी और सदीकी, पीर मिसबाल मालिक लुकमानवी, मुफ्ती नसीरुल्लाह नक्शबंदी, उलामा गुलाम रुबानी अफगानी, उलामा शाहजहान मदनी, अलामा तैयब हजारवी समेत बरतानिया भर से आए मुख्तलिफ जय्यद उलमाए दीन, मशाइख अज़ाम और पीरान हजरात ने खिताब किया। उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई, वो अल्लाह की वहदानियत को। जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो ऐसे लगता जैसे आसमान से अल्फाज नाज़िल हो रहे हैं, अल्फाज आंख मान के खड़े होते हैं। इस मौका पर मुकर्ररीन ने मरहूम पीर अलाउद्दीन सदीकी की फिक्री और रोमानवी किरदार और दीनी खिदमात को सराहते हुए कहा कि औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन ने इस्लाम की तबलीग व अशात के लिए जो रास्ते अपनाए, इन पर आज हमें भी अमल करने की बेपनाह ज़रूरत है। मुकर्ररीन का कहना था औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चल कर ही दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल की जा सकती है। सदर तकरीब जानशीन नैरान शरीफ डॉक्टर पीर सुल्तान और आरफीन सदीकी ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि दीन इस्लाम आज बेशुमार चैलेंजेस से दो चार है। मरहूम कायद पीर अलाउद्दीन सदीकी ने इस्लाम को दरपेश इन्हीं चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए यूरोप में जहां अकीदा खत्म नबूवत को जिंदा और जावेद रखा, वहीं अपनी नुसरत और दानिश से इस्लाम का हकीकी चेहरा भी अहले मगरब के सामने पेश किया।
जिस तरह नबी खातमुल अंबिया और मुरसलीन है, इसी तरह उनसे मंसूब होने वालों तुम दुनिया की आखिरी उम्मत हो, तुम गुजरने वालों पर गवाह हो, तुम्हारे अंदर अदल रखा है, तुम्हारे अंदर तवाज़ुन रखा है, और तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं वो अपना तवाज़ुन खो बैठे। इस मौका पर तकरीब के शरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। हुजूर शेखुल आलम का जो पैगाम था उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसी पैगाम को यहाँ पर दोहराया गया, और आपका पैगाम मोहब्बत रसूल का पैगाम है, अमन व आशिकी का पैगाम है, इस्लाम की सरबुलंदी का पैगाम है, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बतों को साथ साथ लेके चलने का पैगाम है। हमारी नौजवान नस्ल के लिए इतना पैगाम ज़रूर है कि जो अक़ायद और जो दीन आपको आपके बुज़ुर्गों से मिला है उसे लेके आगे चलें। मैं समझता हूँ इस तरह के इज्तिमात जहाँ हम सबको एक प्लेटफार्म पर जमा करने का सबब बनते हैं, वहीं मुसलमानों के जो कोर इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करके उनको हल करने के लिए लायामल बनाने का यहाँ पर हमारे पास एक बेहतरीन मौका होता है, और आज भी हमने यही किया। मेरे लिए यहाँ आना बाइस फ़ख्र है कि यहाँ पे सारे इल्म वालों के साथ बैठ के आज फिर हमने एक अहद तजदीद किया है, एक नए स्लोगन के साथ कि हमारा जो अकीदा अहले सुन्नत है, जो 1400 ईयर्स अगो हजूर के दरबार में बैठने वाले सहाबा का अकीदा है, आज उसी अकीदे पे हम कारबंद होकर अपनी ज़िंदगियों को कामयाबी की तरफ और नबी रहमत की तरफ लेके जाते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद भी ये भी सूफिया के इनामात हैं। हुज़ूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की आफाकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया, और मुल्क बरतानिया, यूरोप और दुनिया भर के अंदर जो इस्लाम का आफाकी पैगाम, सूफिया इकराम की खिदमात और उनकी तालीमात के साथ मोहब्बत और अमन का जो पैगाम दिया गया, यही मिशन सूफिया का है और यही सीरत रसूल का पैगाम है। और इसी मिशन को आम करने के लिए बरतानिया, यूरोप और पाकिस्तान से मुमताज़ उलमा इकराम, मशाइखीन एज़ाम, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और अहले फ़िक्र व नज़र ने कसीर तादाद में शिरकत की, और हज़ारों की तादाद में काफ़िले जो बरतानिया के तूल अर्ज़ से खुलाफा इकराम की क़ियादत में शरीक हुए। इन किस्म की महफ़िल का इनेकाद बरतानिया और यूरोप में उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक शगुन है। ज़रूरत इस अमर की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफाकी तालीमात जो सारी इंसानियत के लिए हैं, उसको मुसलमान अपने किरदार से जो आम करें, यही हालात का तकाजा और वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर आस्ताना नेरा शरीफ की जानिब से इलामिया भी पेश किया गया, जबकि उम्मत मुसलमा की खुशहाली और कश्मीर समेत तमाम मुस्लिम मकबूजा इलाकों की आज़ादी के लिए दुआ भी करवाई गई। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता देते हैं, आज की दुआएं उनके हक में कबूल फरमा कर खुशियां खुदाया उन्होंने नसीब फरमा। बर्मिंघम के मकामी हॉल में पाकिस्तान में बसारत से महरूम स्पेशल एजुकेशन पर काम करने वाले फलाही इदारे रियल विजन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम एक कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान में नाबीना बच्चों की एजुकेशन के लिए दिल खोल कर अतियात दिए गए। कवाल पार्टी ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए शुरका को झूमने पर भी मजबूर कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। रियल विजन वेलफेयर फॉर ब्लाइंड चैरिटी के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम के मकामी हॉल में कवाली नाइट मुनक्किद की गई। रियल विजन के CEO साकिब जावेद ने शुरका को बताया कि रियल विजन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान, रावलपिंडी, अटक, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद के इलाकों में बसारत से महरूम अफराद की एजुकेशन, तरबियत और उनके फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कसीर तादाद में बसारत से महरूम अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। जदीद दौर की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होने और नाबीना बच्चों की तालीम की गर्ज से हमें मजीद फंड्स की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुल्क में ऐसे अफराद की खिदमत करके कुर्बत इलाही हासिल कर सकें। इस दौरान मुखय्यर ख़वातीन हज़रात ने दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौका पर कव्वाल पार्टी ने शुरका की फरमाइश पर लाइव परफॉर्मेंस के जरिए अपने रवायती अंदाज में गीत सुनाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौका पर रियल विजन के चीफ एग्जीक्यूटिव साकिब जावेद, ताहिरा हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर ब्लाइंड के फंड रेजिंग इवेंट में सपोर्ट करने वालों को ये शुक्रगुजार है। हमारी कोशिश है कि ब्लाइंड लोगों को भी जदीद दौर की सहूलियात फराहम की जाए। इवेंट हुआ माशाल्लाह, ये बहुत एक सक्सेसफुल इवेंट है। रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड जो कि अदारा है हमारा, आई एम द चेयरमैन ऑफ रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड। इट्स वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्लाइंड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हमारा ये एक बहुत कामयाब इवेंट, जिसमें मैं बर्मिंघम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो एक बड़ी तादाद में हमेशा की तरह इकट्ठे हुए हैं
اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارا مان رکھا ہے. ہمارا جو ادارہ ہے وہ بلائنڈ لوگوں کی ہر فیلڈ میں کوشش کر رہا ہے, تعلیم, روزگار, ان کے فوڈ پیکیجز کی فراہمی اور ان کی باقی خیالات رکھنے میں ہم ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کے لیے یہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارا چیریٹی ایونٹ ہے, جو بہن بھائی ہمارے ساتھ آئے, ان کا تعاون کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا, سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ ہمارا چیریٹی ایونٹ جو ہے آج کامیاب ہوا ہے. Amazing Real Vision charity. Saqib Bhai, who's come from Pakistan especially for this, he's such an inspiration. You know, Khud he's blind, and to run a charity and to be a solicitor, the work he's doing in Pakistan, from feeding the poor to, you know, all the Qurans, the winter packages. It's such an amazing atmosphere here. We're so blessed that we could attend this event as well and be a part of this amazing evening. جو یہاں پہ ایونٹ ریئل ویژن ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہوا, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ اور لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ ثاقب بھائی چیئر پرسن آف ریئل ویژن ویلفیئر ٹرسٹ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, وہ خود بھی بصارت سے محروم ہیں اور اپنے جیسے بہت سارے لوگوں کی وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور ان میں ایک اچھی چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ان میں بہت بڑی کوالٹی ہے کہ یہ ہر کام کو اپنی سرپرستی میں کرتے ہیں. I would like to thank everybody that came to this charity event for our charity Real Vision. We're grateful that families have taken part in such a fabulous cause, and we've actually managed to fill this whole hall up of 160 people. We only started organizing this event roughly about 3 weeks ago, but alhamdulillah. شرکا کا کہنا تھا کہ ثاقب جاوید خود بلائنڈ ہیں اور وہ بصارت سے محروم لوگوں کی بہتری کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, لہٰذا مخیر حضرات کو ان کے اداروں کی فل سپورٹ کرنی چاہیے. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. یوم پاکستان کے حوالے سے نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. دیکھیے ڈاکٹر محمد کامران کی رپورٹ. پاکستان اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر دی ہیگ کی انتظامیہ نے پاکستان کمیونٹی سینٹر میں یوم پاکستان کی مناسبت سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں ہیگ کے علاوہ ایمسٹرڈیم, روٹرڈیم سے بھی پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس تقریب کے مہمان خصوصی ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر سلجوگ مستنصر تارڑ تھے. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اکھ سونے دی کنی سونی. اس موقع پر سفیر پاکستان سلجوگ مستنصر تارڑ خطاب کرتے ہوئے پاکستانی اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر کی انتظامیہ کو شاندار تقریب کا انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کی. ان کا کہنا تھا کہ 23 مارچ ہماری قومی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہالینڈ اور پاکستان کے درمیان تجارت میں اضافہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ ثقافتی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے. اس موقع پر دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے یوم پاکستان کی اہمیت کو بیان کیا. قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی پاکستان کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. تقریب کے شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وطن عزیز کی ترقی کے لیے اوورسیز پاکستانی اپنا تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے. ڈاکٹر محمد کامران, 92 نیوز, دی ہیگ, نیدرلینڈ. سعودی عرب میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر عدنان اقبال بٹ کی جانب سے معروف کاروباری شخصیت فیض ابو طیب کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا, جس میں دیگر لیگی عہدیداروں نے بھی شرکت کی. تفصیلات کے مطابق دارالحکومت ریاض میں عدنان اقبال بٹ کی رہائش گاہ پر دیے گئے عشائیے میں شریک افراد نے پاکستان میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہی ملک کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے اور اس سے قوم کو بھی سکھ کا سانس ملے گا. عدنان اقبال بٹ کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملک کی تاریخ کا ایک ایسا لیڈر ہے جن پر ان گنت الزامات لگائے گئے, مگر پاکستان کی جتنی ترقی نواز شریف کے دور اقتدار میں ہوئی اتنی کسی دور میں نہیں ہوئی. نواز شریف پر لگایا گیا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. عشائیے کے شرکا میں فیض ابو طیب کے علاوہ محمود الحق ٹوگر, سجاد چودھری, وقار نسیم وامک, چودھری عابد الیاس رحیم شریک تھے. سعودی عرب میں پاکستان فورم کی جانب سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی, جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے شہر الجبیل میں پاکستانی فورم کی جانب سے منعقدہ تقریب میں سیاسی, سماجی, ادبی اور مذہبی حلقوں کے سینکڑوں افراد سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی پاکستان میں دین اسلام کی حکومت کے لیے کوشاں ہیں. ہمارا مقصد پاکستان کو دین اسلام کی روایات اور قوانین کے مطابق
रवाबित ढालना है, जिसकी मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जमात इस्लामी मजहबी सियासी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा जमहूरी इक़्तिदार को अपनाया। हाफिज़ नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा, जिससे मुल्क तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। तकरीब से जमात इस्लामी अल जबीक की नाज़िम डॉक्टर खलील अहमद ने भी इजहार किया। दिफाई मसनूआत, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अपनी नौयत की मुनफरिद नुमाइश मलाइशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में जारी है। मलाइशिया इस नुमाइश की मेज़बानी 1988 से कर रहा है। कोरोना के बाइस 4 साल के वक्फे के बाद होने वाली नुमाइश का अहवाल जानिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ जावेदुल रहमान की रिपोर्ट में। दफाई मसनूआत, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से अपनी नौयत के मुनफरिद और दुनिया की बड़ी नुमाइश की मेज़बानी 1988 से पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क मलेशिया कर रहा है। ये नुमाइश हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती है। कुआलालंपुर मलेशिया में DSA का 70वां एडिशन कोरोना वायरस के फैलाव की बदौलत 4 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद किया जा रहा है। 28 मार्च से जारी इस नुमाइश के तीसरे रोज भी वसी अरीज एग्जीबिशन सेंटर में बैनुल अक़वामी और मलेशिया के मुकामी ट्रेड विजिटर्स की बड़ी तादाद मुख्तलिफ ममालिक के पवेलियन का दौरा करते हुए नजर आई। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और दिफाई साजो सामान के हवाले से मलेशिया के मारूफ इदारे इनफेक्ट वेंचर्स के माबैन एक MOU पर दस्तखत किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इनफेक्ट वेंचर्स मलेशिया के इश्तराक से मलेशिया में पैदावारी यूनिट लगाया जाएगा। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनफेक्ट वेंचर्स मलेशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर दातो हजीजान अहमद और पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स उस्मान अली भट्टी ने तफसीलात से आगाह किया। इस तरह की इंस्टॉलेशंस के थ्रू हम पाकिस्तानी रॉ मटेरियल्स रिलेटेड टू डिफेंस इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं मलेशिया जैसी जगहों पे। और जब ये प्लांट हमारा यहाँ लग जाएगा तो ये सिर्फ मलेशिया को कैटर नहीं करेगा, बल्कि लोकल मलेशियन कंपनी जिसके साथ हमारी ये डील हो रही है वो इस आसियान रीजन में भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे भी POF और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह ताला रोशन होगा। I really to thanks to Pakistan ordnance factories willing to work together with Malaysian company, with my company, to manufacture the ammunition in Malaysia. So we're going to be the first really manufacturing the ammunition in Malaysia. So I already discussed with the chairman of POF. And we agreed everything to do all the manufacturing in Malaysia. Alhamdulillah and inshallah, thing will be materialized. डिफेंस सर्विसेज एशिया के नाम से जारी इस दिफाई नुमाइश की वेबसाइट पर भी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इस वेबसाइट को चंद रोज में 7,41,782 अफराद विजिट कर चुके हैं। यहाँ 20 इंटरनेशनल पवेलियन मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान का पवेलियन खुसूसी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दुनिया की 1170 कंपनियां इस नुमाइश में शरीक हैं। जी, DSA 2022 के तीसरे रोज़ आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मलेशिया के इनफेक्ट वेंचर्स के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन का एक माहिदा है, जिसके तहत POF बाकायदा मलेशिया में अपनी प्रोडक्शंस का प्लान लगाएगी और इस माहिदे पर 2023 में अमली जामा पहनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालंपुर, मलेशिया। 6 करोड़ डॉलर की महंगी पेंटिंग और बुर्ज अल अरब की कहानी। जी हाँ, दुबई में वाक़ दुनिया के वाहिद 7 स्टार लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर आर्ट नुमाइश हुई। नुमाइश का इफ्तिताह मशहूर बरतानवी मुसव्विर साशा जाफरी ने किया, जिसमें मारूफ अरब समाजी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बो अब्दुल्ला ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। आर्ट नुमाइश ने शुरका के दिल मोह लिए। 6 करोड़ 2 लाख डॉलर में सेल होने वाली पेंटिंग की मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद बताएंगे। दुनिया के सबसे बड़े और पहले 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर दिल को महसूर करने वाली आर्ट नुमाइश दी आर्ट मेज का इफ्तिताह मशहूर बरतानवी मुसव्विर साशा जाफरी ने अपनी लाजवाब पेंटिंग्स की नुमाइश करके किया। आर्ट नुमाइश का मकसद यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम के 50 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाना था। साशा जाफरी ने बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर नुमाइश की तैयारी में 6 माह लगाए और अपनी पेंटिंग्स को 6 हफ्तों में मुकम्मल किया था। नुमाइश में गैर मुल्की सरकर्दा शख्सियात समेत अरब समाजी और कारोबारी हजरात ने भी शिरकत की और नुमाइश की खूबसूरती की दिल खोल कर तारीफ की। इस मौका पर साशा जाफरी का कहना था कि उन्होंने एक पेंटिंग तैयार करने के लिए मुसलसल 28 घंटे काम किया, ना कुछ खाया और ना पिया, क्योंकि बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर मेगा नुमाइश पर वो बहुत खुश थे। Show them on the Burj Al Arab helipad. It's crazy, and it's actually very spiritual. It's like it's a very spiritual experience to be up here in amongst
these paintings in this beautiful light, and to experience this and to be able to share that with the world is a humbling experience. इस आर्ट नुमाइश में साशा जाफरी ने अपनी 30 पेंटिंग्स को शुरका के सामने पेश किया। इन पेंटिंग्स में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रंग नुमाया थे। उनका कहना था कि आलमी सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनेस्को ने बहुत काम किया। My exhibition of the 30 UNESCO World Heritage Sites, and the idea is I was asked by UNESCO on their 50th anniversary to celebrate the 50 UNESCO World Heritage Sites, and they're like the most important sites of our world that need protection, they need looking after, they represent humanity, they represent the journey of civilization. गेस्ट ऑफ ऑनर मारूफ अरब समाजी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर बू अब्दुल्ला का कहना था कि नुमाइश में शिरकत करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आर्ट नुमाइश वाकई काबिल तारीफ थी। I want to thanks Sacha Jafri who is invite me here for his lovely painting. He's so amazing. He's talent man. I think he's chosen also the good place. Lovely. I love it from this many activity he's doing. How he's doing, I think is so major. नुमाइश के शुरका साशा जाफरी के आर्ट वर्क को दाद दिए बगैर न रह सके। इससे कबल साशा जाफरी की तैयार करदा दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग 6 करोड़ 2 लाख डॉलर में नीलाम हो चुकी है। दुनिया के इस सबसे बड़े फन पारे को सफर इंसानियत का नाम दिया गया था, जो 70 फ्रेम्स पर मुश्तमिल था। जी, दुनिया के नंबर 1 होटल बुर्ज अरब के हेलीपैड पर लगने वाली ये आर्ट एग्जीबिशन अपनी मिसाल आप है। इस आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से अपने नाजरीन के नाम एक शेयर करना चाहूँगा। वो मुसन्नफ हैं जो अल्फाज रकम करते हैं, हम मुसव्वर हैं जो जज्बात कलम करते हैं, हर्फ करतास पे रखते हैं सितारों की तरह, उनमें एहसास के हर रंग को सनम करते हैं। हम तो रंगों की भी तौकीर बढ़ा देते हैं, जो कोई कर नहीं सकता वो हम करते हैं। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।